लास्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट 4 टाइप्स की रिएक्शंस हम इसमें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। ये वाला जो रिएक्शन है दिस गिव्स द acidic character of carboxylic acids. Right? So carboxylic acid, it dissociates as carboxylate ion CH3COO negative and H positive. The release of the proton over here, ये जो proton release हो रहा है, this release of the proton makes carboxylic acid behave as acids, right? अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे reverse reaction है। Reaction जो है forward direction में तभी जाएगी अगर carboxylate ion stable है ना? So it is said that the carboxylate ion is resonance hybrid of 2 structures. जैसे यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो सेकेंड जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू बी O with a negative charge and double bond, ठीक है, with 4 carbon atom, 4 lone pair of electrons. उसी तरह से it is said that जो नेगेटिव चार्ज है वो delocalize होता रहता है between both the oxygens, as a result of which the carboxylate ion that becomes stable. Stability of the carboxylate ion explains the acidic character of CH3COOH. Okay, forward direction में reaction होगी, H positive release हो जाएगा and hence this starts behaving like an acid. ठीक है? So there are certain points which we need to know about the acidic character of carboxylic acids. The first point, अगर हमको strength इसकी explain करनी है carboxylic acid की, so हमारे पास reaction है CH3COOH plus H2O to give us CH3COO negative plus H3O positive. So arsenous acid की तरह भी behave करेगा और Bronsted acid की तरह भी behave करेगा कि की जो value है that is going to be concentration of CH3COO negative, concentration of H3O positive upon concentration of COOH. It is said that higher the value of Ka, more is the strength of the acid or stronger is the acid. ठीक है? Higher the value of Ka, stronger is going to be the acid. We also know that pKa that is equal to minus log of Ka. Therefore, higher the value of pKa, higher the value of pKa, weaker is the acid. Right? pKa माइनस लॉगरिथम है Ka का, अगर Ka की वैल्यू हायर है तो एसिड स्ट्रॉन्गर है, तो अगर
pK नेगेटिव लॉगरिथम हो गया, तो pK की वैल्यू अगर हायर होगी तो एसिड इज गोइंग टू बी वीकर। ठीक है, अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ एसिड्स, तो हम एसिड्स के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगा सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। इफेक्ट ऑफ substituents on the strength of acid. दो तरह के substituents होते हैं, one is electron withdrawing and the other one that is electron releasing. If we are talking of electron withdrawing group, तो electron withdrawing group क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे कार्बोक्सिलेट आयन हुआ हमारा R, ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, स्टेबलाइजेशन इसकी तब होगी अगर इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाए। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कब हो सकती है? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स like halogens neutralize the negative charge neutralize the negative charge, thereby making carboxylate ion more stable. Therefore this increases the acidic strength. Right? On the basis of this, अगर हम लें कोई भी एक, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग नंबर 1 टाइप ऑफ हेलोजन विच इज प्रेजेंट, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे FCH2COOH, फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचेगा और सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन Cl, then Br, then iodine. ठीक है, second it depends upon the number of halogen atoms. Number of halogen atoms का मतलब कि अगर suppose there are 3 CCl3 COOH, more the number of halogens, more it will stabilize the negative charge and more is going to be the acidic character. तो ये ज्यादा होगा acidic than CnCl2 COOH, then अगर एक ही है CH3Cl COOH. So number of halogens also affects the acidic strength. Then third is the position at which the chlorine or the halogen that is attached. Right? जितना near halogen COOH group के साथ attached होगा उतना ही acid ज़्यादा strong होगा. जैसे for example if we have
CH3, CH2, Cl, COH। यहाँ पे क्लोरीन इज नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है। सो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा रादर देन जहाँ पे क्लोरीन जो है वो कार्बोक्सिलेट से थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक है। देन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन C एंड C, राइट। अगर सपोज हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर sp2 और फिर sp3। जैसे अगर हमारे पास है, हम बोल रहे हैं क्या, अगर sp है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है sp हाइब्रिडाइजेशन की, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, फिर sp2 फिर sp3। तो मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH। अब यहाँ पे जो ये वाला कार्बन एटम है दिस इज sp है हाइब्रिडाइज्ड, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। उसके बाद sp2 बेंजोइक एसिड ले लो, C6H5 COOH। तो अल्फा कार्बन एटम ओवर हियर इज sp2, ये अल्फा कार्बन एटम यहाँ पे ये वाला होगा, है ना। सो अल्फा कार्बन एटम दैट इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन बेंजोइक एसिड। फिर उसके बाद आ गया एसिटिक एसिड। जहां पे अल्फा कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इज इट क्लियर? इससे अगर आप जैसे यहाँ पे हमने बेंजोइक एसिड लिया है तो हम इसको भी ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे भी अल्फा कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और फिर उसके बाद CH3 COOH। क्लियर हो गए फ्रेंड्स? तो इफेक्टिव सब्स्टिट्यूएंट्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हैलोजन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर। सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन्स। जितने ज्यादा हैलोजन्स होंगे उतना ही ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। थर्ड पोजीशन के ऊपर जितनी पास होगा हैलोजन टू द फंक्शनल ग्रुप उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। एंड नंबर 4 ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, अल्फा कार्बन एटम अगर sp हाइब्रिडाइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, वो कार्बोक्सिलेट आयन को और ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है और एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट। देन C6H5 COH में अल्फा कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इससे कम है। यहाँ पे भी अल्फा कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ इन दोनों में कंपैरिजन क्यों है? बिकॉज़ बेंजीन इज resonantly stabilized, that is why, ठीक है। so this is going to be more, और सबसे कम जो है that is going to be acetic acid, right? clear हो गया? okay, then let's go on to the effect of electron donating groups. effect of electron donating groups. electron donating groups जो होते हैं वो चार्ज को इंटेंसिफाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन, एसिटेट आयन है ये। नाउ दिस मिथाइल ग्रुप इट हैज अ टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है तो ये इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देता है, और जब ये negative charge intensify होगा then what is going to happen? Stability of the carboxylate ion decreases. It will become more reactive. So in other words we can say that electron donating groups decreases the
acidic strength by intensifying the by intensifying the negative charge, as a result of which HCOH है जो formic acid, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, formic acid, so this is going to be most acidic. ठीक है, फिर उसके बाद एसिडिक एसिड CH3COOH, फिर उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड, राइट, और फिर उसके बाद as the number of alkyl groups increases on the alpha carbon atom, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, acidic strength is going to decrease. ठीक है, तो यहाँ पे दो है आपके पास, ये देखो, एक ये भी रिलीज करेगा और एक ये भी रिलीज करेगा. So as a result the acidic strength that is going to decrease. Clear हो गया? So what have we understood over here? कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देती है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैलोजेंस होते हैं, we have already done. उसके अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन-कौन से हैं वो लिख लो आप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, CHO is electron withdrawing, CHO is electron withdrawing, cyano is electron withdrawing, nitro is also electron withdrawing. ठीक है, and electron releasing में OH is electron releasing, methoxy OCH3 is electron releasing, CH3 is also electron releasing, and NH2 is electron releasing. ठीक है, clear हो गया? Okay. Then after that we come to the comparison of relative acidic strength, comparison of acidic strength of alcohols, phenols and carboxylic acids. Right? Now first we will compare alcohols and carboxylic acids. When we are looking at alcohols, तो हमने पिछले वाले चैप्टर में भी करा है कि alcohols जो हैं वो डिसोसिएट होते हैं into alkoxy ion and H positive. ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो डिसोसिएट होते हैं as CH3COO negative plus H positive ion. राइट, अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जहां पे ये वाला आयन ज्यादा स्टेबल होगा, राइट. एल्कोक्सी और कंपैरिजन जो है वो एसिटेट आयन के बीच में होगा या कार्बोक्सिलेट आयन के बीच में होगा. जो ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, H positive रिलीज हो जाएगा, as a result of which that is going to be more acidic. It is said that carboxylate ion is resonantly stabilized. अभी हमने करा था इसका रेजोनेंस के दोनों हाइड्रेट्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू बी दिस. ठीक है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन, carboxylic acids are stronger acids than alcohols. ठीक है,
due to greater stability of carboxylate ions, due to greater stability of carboxylate ions than alkoxide ion, carboxylic acids are stronger acids than alcohols. ठीक है, सेकेंड कंपैरिजन जो हमने करना है दैट इज बिटवीन फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब फिनोल्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू फिनॉक्साइड आयन, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव। अल्कोहल्स वाले चैप्टर में हमने इसके रेजोनेंस हाइब्रिड्स पढ़े हैं फिनॉक्साइड आयन के। अगेन बिकॉज द फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, reaction will go in the forward direction. ठीक है, so we have, let's look at the resonating structure of phenols. फर्स्ट स्ट्रक्चर याद आएगा, है ना? नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, राइट? ठीक है, सो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। When we looking at carboxylic acid और carboxylate ion का, जैसे यहाँ पे देखो हमने बनाया हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, this is also resonatingly stabilized, that is also resonatingly stabilized, but we say that carboxylic acids are stronger acids than phenols. Carboxylic acids are stronger acids than phenols due to the following two reasons. First reason क्या है कि जब हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन में कि नेगेटिव चार्ज इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, है ना? और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हमने, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखना है, बाय लुकिंग एट द resonating structures of, by looking at the resonating structures of carboxylate and phenoxide ion, it is seen that in carboxylate ion, the negative charge is on the more electronegative oxygen, whereas in phenoxide ion
In phenoxide ion, the negative charge is on the less electronegative carbon, which makes carboxylate ion more stable. ठीक है? Then second reason is that क्या हो सकता है second reason? Why carboxylate ion is more stable than that? और कोई reason अभी नजर आता है? नहीं, है ना? एक ही reason नजर आएगा कि दो है? एक ही रीजन नजर आता है, बिकॉज ऑफ दिस हम लोग बोलते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या एसिडिक कैरेक्टर है उसको प्रूव करने के लिए रिएक्शंस देखते हैं. एसिडिक कैरेक्टर नंबर 1, reaction with metals. मेटल्स के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है टू रिलीज हाइड्रोजन. तो कोई भी आप कह सकते हो कि एसिड या कोई भी सब्सटेंस अगर मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज करता है तो वो उसका एसिडिक नेचर जो है वो प्रूव करता है. ठीक है, सो रिएक्शन हमारी क्या होगी? +2Na to give 2CH3COONA, sodium acetate plus hydrogen. ठीक है, sodium acetate plus hydrogen. Then number second reaction we are going to do with alkalis. alkalis के साथ जब रिएक्शन करते हैं CH3COOH plus NaOH, it will give us the neutralization reaction salt plus water. Acid plus base to give salt plus water. तो salt क्या हो गया? CH3COONA. water क्या हो गया? H2. ठीक है, थर्ड रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. ये कल भी हमने किया था. कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ ये रिएक्ट करता है टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ एफोवेसेंस. एफोवेसेंस क्या होता है कि जैसे आप दोनों को मिक्स करोगे एकदम से फ्रॉथ बनने लग जाती है, दैट इज एफोवेसेंस. जैसे आप पानी के अंदर इनो डालते हो ना तो एकदम से आप देखते हो उसमें से बबल्स निकलने लग जाते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एफोवेसेंस. ठीक है, सो जब कार्बोनेट्स के साथ ये रिएक्ट करता है एफोवेसेंस ये इसलिए शो करता है बिकॉज इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. दिस इज कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने रिएक्ट किया. कल हमने टेस्ट भी किया था ऐसा एक, है ना, किया था ना. सो ये दे देगा CH3COONA प्लस तो जो एफोवेसेंस होती है दैट इज ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज प्रेजेंट, जो ये इवॉल्व हुई है. ओके, उसी तरह से बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन हो सकती है.
CH3COONA plus CO2 plus H2. राइट, क्लियर हो गया? सो ये जो सारी रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस क्या शो कर रही है? इट इज गिविंग अस द प्रूफ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बीइंग एन एसिड, reacting as an acid. So these are the first type of reactions. Second type of reactions आपने almost सारी करी है. Reactions involving OH group of carboxylic acids. Second type of reactions. Reactions involving OH group. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लीवेज है वो किस तरह से होगा. R C double bond O OH. The cleavage is going to take place from here. Substitution of the OH group is going to take place in this reaction. ठीक है? So first जो reaction है that is reaction with PCl5, PCl3 and SOCl2. ओके, सो हमारे पास आ गया CH3 COOH plus PCl5. This is going to give us CH3 COCl. ओइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड इसमें बनते हैं. दिस इज इथेनोइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl. इसी तरह से PCl3 के साथ भी रिएक्शन शो कर सकते हैं. Three moles of CH3COCl will be formed over here plus orthophosphoric acid. Orthophosphorus acid H3PO3. Orthophosphorus acid. और यही रिएक्शन अगर हम SOCl2 के साथ करें तो क्या दे देगा ये? CH3COCl plus SO2 plus H2. नहीं HCl, H2 नहीं HCl. ठीक है? So this is the first type of reaction. The second type of reaction is reaction with alcohols. ये वाली reaction भी हम already कर चुके हैं. Formation of ester. Reaction with alcohols, esterification reaction. Formation of esters. So we have R COOH plus ROH. ठीक है? So इसमें से एक water molecule निकल जाता है. If we are taking different kind of R, the reaction takes place in acidic medium to give us R plus HOH. ठीक है? So इस तरह से हम esterification reaction करते हैं. Then the next reaction is reaction with ammonia. Formation of amides. Reaction with ammonia. Formation of amides. So we have CH3COOH plus NH3. Again ये neutralization reaction की तरह ही behave करेगी because ammonia is a base.
दिस इज एन एसिड, तो ये दे देती है CH3CONH2 प्लस वाटर। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? इथेनामाइड। ठीक है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अब अगर सपोज हम लोग ले लेते हैं थैलिक एसिड, राइट, इसको जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पहले एक सॉल्ट, राइट, CONH4, दिस इज अमोनियम थैलेट। और जब हम इसको हीट करते हैं COO आएगा, सॉरी, जब हम इसे हीट करेंगे then it loses 2 water molecules, ठीक है, to give us थालामाइड। थालामाइड का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज थालामाइड। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट? Then the next reaction, fourth reaction is formation of acid anhydrides. Formation of anhydrides. Anhydrides का मतलब होता है a loss of water molecule, right? जैसे for example हमारे पास है RCOOH और हम एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं RCOOH का, इसे हम हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इस तरह से। तो ये अब हमें क्या दे देगा? RC डबल बॉन्ड O, this is known as anhydride. Example, we have CH3COOH, heated in presence of P2O5, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, this is acetic anhydride, acetic anhydride। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शंस है, दे आर द थर्ड टाइप ऑफ reactions involving carboxylic group, राइट? इसमें जो रिएक्शंस हैं, जैसे हम कल कर रहे थे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, वो इसमें आएंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह से रिमूव करते हैं? द रिएक्शन इज विद सोडा लाइम। सोडा लाइम जो है दैट इज NaOH in presence of calcium oxide. So if we have CH3COOH plus NaOH in presence of calcium oxide,
ठीक है, सो ये हमें क्या बना देगा, या पहले हम इसमें RCOONA बनाते हैं, CH3COONA। दिस इज व्हाट, सोडियम एसिटेट। फिर इस सोडियम एसिटेट को हम फर्दर रिएक्ट करते हैं विद NaOH in presence of calcium oxide, right? So अब क्या होगा, यहाँ पे ये रिमूव हो जाता है, इनफैक्ट ये वाला ऑक्सीजन भी रिमूव होगा, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, we will get an alkane। ये रिएक्शंस 11th में करी हुई है, राइट। सो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो मेजरली हेल्प करती है टू प्रिपेयर एल्केन्स, ठीक है। अब उसी तरह से सेकंड जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन में हम पोटेशियम एसिटेट लेते हैं और इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं टू गिव CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव। दो रिएक्शंस इसमें होती है, रिएक्शन एट द एनोड एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, है ना। सो CH3COO नेगेटिव, इट लूजेस 2 electrons to give ethane plus carbon dioxide। सो यहां पे भी हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। और जो K पॉजिटिव है, एट कैथोड क्या रिएक्शन होगी, K पॉजिटिव दैट इज गोइंग टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन रिएक्शन होती है इधर टू गिव अस K।